خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور موجود ہیں ہم لائف بوائے کے اس کاؤنٹر پر، جہاں پر ہم روزانہ بتاتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے ہاتھ دھونا۔ اچھا، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہاتھ دھونے کو بھی رسمی کارروائی کے طور پہ کرتے ہیں، یا جس کو ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں ایزی لیتے ہیں۔ وہ ہم کیسے لیتے ہیں؟ یہ ہاتھ دھو لیا بس۔ تو لائف بوائے کا یہ کہنا ہے کہ پراپر ہاتھ دھونا ہے، یہ صرف ہاتھوں کو گیلا کرنا نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح سے کہ پہلے آپ ہاتھوں پر اس طرح سے آپ نے مکمل پانی بہانا ہے، اور اس کے بعد لائف بوائے کا ہینڈ واش جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے ملنا ہے کہ پورے ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں پر، اس کے ہر حصے پر یہ کلین کر لے۔ اور لائف بوائے کا یہ پیغام ہے کہ لائف بوائے کا ہینڈ واش جرم سے، بیکٹیریا سے، اور جو آج کل کووڈ-19 جیسے وائرسز ہیں، ان سب سے نجات دلاتا ہے۔ 99.9% ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 99.9% یہ ان تمام جرمز اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے۔ تو بچوں کو بھی کہیں، خود بھی دن میں بار بار ہاتھ دھوئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو طبی ماہرین کا جو مشورہ ہے اس کے مطابق ہم کرونا وائرس سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم جائیں کچن میں یا کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگائیں تو ضرور ہاتھوں کو دھوئیں، اور لائف بوائے کے ہینڈ واش سے دھوئیں، ان کا سینیٹائزر بھی استعمال کریں۔ تو ہم جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو ہوتا ہی کچن میں ہے، اور جس میں واقعی ہمیں ہاتھ لگانے ہوتے ہیں یا ہمارا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ السلام علیکم شیف اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام شبیر بھائی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی۔ اچھا بھائی، آج تھوڑی سی گستاخی ہو گئی ہے، اور گستاخی یہ ہوئی ہے کہ جب میں انٹرو دے رہا تھا تو آپ کی جو ڈش میرے سامنے آئی وہ مجھے بولنے نہیں آئی صحیح، اچھا بیان کرنے نہیں آئی۔ تو پہلے تو آپ سے معذرت، پھر چکن اس میں سمجھ میں آیا تو چکن یعنی مرغی صاحبہ سے معذرت، آگے پتہ نہیں یہ کوڈن بلیو ایسا کچھ لکھا ہوا تھا، صحیح بتا دیں یہ ہے کیا؟ شبیر بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ دی گریٹسٹ لیول آف کانفیڈنس از، اس بات کو ماننا انسان سے غلطی ہوئی۔ ہاں، تو آئی تھنک اس سے بڑھ کر کانفیڈنس کی کوئی مثال لیکن کھانے میں غلطی نہیں ہوگی، کھانے والا کانفیڈنس۔ ہاں چلیں، کیا ہے کیا یہ؟ چکن کارڈن بلو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کارڈن بلو، اور سوئٹزرلینڈ کی ریسیپی ہے، سوئٹزرلینڈ کی، اوریجنیٹڈ فرام سوئٹزرلینڈ۔ اس کا مطلب زیرچ کا جہاز آج طارق روڈ پہ لینڈ ہو گیا۔ ہاں ہاں۔ اچھا، پھر آپ، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ یہ چکن صاحبہ کو، جو کہ اس وقت زندگی کی حالت میں نہیں ہے، حیات کی حالت میں نہیں ہے، پھر بھی آپ انہیں مارے جا رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس انسان کو اختیار ہے، مچھلی کھا لے، مٹن، چکن، ہر چیز کے ساتھ، یعنی کاٹنے کے بعد بھی۔ ہاں، اس کی اچھا، وجہ کیا ہے اس کو جو آپ تشدد کر رہے تھے؟ شبیر بھائی، اس کی اسٹفنگ ہوگی ذرا مشکل ریسیپی، ہر کوئی شاید اتنا اچھا نہ بنا پائے۔ اچھا، اس کے پاکٹ بنانا ہے، اس کی فلنگ کرنی ہے۔ دکھائیے ذرا، یہ ہے بون لیس چکن، اور پورا پیس ہے بون لیس۔ ہاں شبیر بھائی، اس کو 2 پیس کیے، اس کے بعد دیکھیے ذرا، چکن کارڈن بلیو، چکن کارڈن بلیو ایسے بولیں گے؟ ہاں، چکن کارڈن بلیو، اس طرح سے ہیمر کرنا ہے۔ یہ دیکھ، یہ دیکھ، اسٹف فوڈ کا پاکستان میں رجحان نہیں ہے، ایسے ہی گوشت ہم بناتے ہیں، لیکن یہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ چلتا ہے۔ جب ہم نے ذکر کیا تھا نا کٹی ہوئی لال مرچ کا، تو کہا تھا کہ یہ جو لفظ کوٹ ہے یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جب کوٹ لگتی ہے کسی کی لاکب میں، تو اس صحیح بات، مرغی کی کوٹ لگ رہی ہے، ہاں، محبت سے، بعد الذبح۔ ہاں صحیح بات ہے جی۔ اچھا جی، ذکر ہوا زیرچ کا، یہ زیرچ کی ڈش ہے، یعنی کہ سوئٹزرلینڈ کی، بہت خوبصورت ہے۔ ویسے گئے آپ؟ بالکل گیا ہوں کافی مرتبہ، لیکن بہت خوبصورت ہے۔ لیکن پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان، سوات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سسٹمیٹک سیاحت کو ہم فروغ دیں تو زیرچ اور جینیوا یعنی کہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ وہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ واہ، ایسا ہی ہے۔ اچھا، لیکن مینٹلٹی کا بہت فرق ہے۔ زیرچ کے اندر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ذہنی طور پر یہ تیار ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کا بہتر امیج پیش کرنا ہے جو یہاں آتا ہے، کیونکہ سیاحوں کا ایک سمندر ہے جو 365 دن میں آ جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تو ان کے رویے ہی ایسے ہیں کہ جس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سوئٹزرلینڈ گیا اور وہاں پہ فلاں دکاندار سے میرا جھگڑا ہو گیا، اس نے میرے سر پہ سلاخ مار دی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے میرا بٹوا چوری کر دیا۔ بہت وہ خیال رکھتے ہیں کہ بہترین ہاسپٹیلٹی جس کو کہتے ہیں،
कि मेहमान नवाजी का बेहतरीन मुजाहरा करें। और वहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स में जब आप जाएंगे तो कैटलॉग्स पड़े हुए हैं कि आपको कौन सी जगह पे जाना है। तो एक जगह ऐसी थी कि जिसको हमने चूज़ किया और वहाँ पे एक राइड थी जिसमें आप जब बैठते हैं तो रॉकेट की तरह वो आपको बादलों में लेके जाती है। अच्छा। लेकिन जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आज मौसम ख़राब है, तो अंदेशा है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो कुछ ख़तरा आपको महसूस होगा। तो 4 घंटे के लिए उन्होंने राइड मनसूख कर दी। अच्छा। रिस्क नहीं लेते कि मैं गया और मैं इंजॉय नहीं कर सका और मैं वापस पाकिस्तान आके कहूँ कैसी राइड में मैं बैठ गया था। जैसे हमारे यहाँ है चकडोल का झूला गिर गया, हाँ सही बात, 2 बच्चे जख्मी, या एक झूला ऊपर जाके ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आ रहा, तो उसको फिर रस्सी से ला रहे। ऐसा कोई इम्प्रेशन या इमेज नहीं बनाते। अगर उनको लगा मौसम ख़राब है, अगर उनको लगा कि जो आया है किस अपने मुल्क से यहाँ उसका इम्प्रेशन हमारे मुल्क के बारे में बुरा हो सकता है, तो राइड को 4 घंटे डिले कर दिया, लेकिन इम्प्रेशन को ख़राब नहीं होने दिया। कहा कि इसकी जगह पे आप ये राइड ले लें या इस जगह चले जाएं। क्या बात है। अब बताएं क्या करना है, फिर ब्रेक पे जाना है। हाँ यहाँ तो जहाज़ भी गिरते हैं। हाँ वहाँ पे भी गिरते हैं, जहाज़ तो कहीं पे भी गिर सकते हैं। और एक जहाज़ हमारे यहाँ है जो ककड़ी ग्राउंड में भी गिरते हैं। हाँ मतलब वो जहाज़ दूसरे हैं, वो दम वाले जहाज़ है साहब, वो हर जगह गिरते हैं पूरे पाकिस्तान में। एक हमारा बहुत अच्छा एंकर है, उसने एक रमज़ान में कहा कि जो सवालों के सही जवाब देगा उसको मैं जहाज़ दूंगा। लोग सवालों के जवाब दे बैठे, अब तक वो जहाज़ तो नहीं आया, घर के अतराफ दूसरे जहाज़ आ गए जी। अच्छा शबीर भाई, इसे मैरिनेट करते हैं सिंपली, कीजिए इसी प्लेटर में नमक। हाँ नमक, जिससे जायके का आगाज़ हुआ जी। सफ़ेद मिर्च और साथ ही काली मिर्च कूटी ऐड कीजिएगा। काली मिर्च कुटी हुई। अच्छा ये वॉर्सेस्टरशायर सॉस होता है, अच्छा अगर ना हो तो आप सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ज़रा स्पीड तेज। बस ऐड किया, ऐसे मिक्स किया। हाँ हल्का सा गार्लिक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल मिक्स किया और इसमें से मैरिनेट कर लेंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तैयार हो गया है। ज़रा देखिए शेप क्या बना है। ये कीमा तो नहीं है, कीमा नुमा हो गया है चिकन। हाँ, यानी ये ऊपर से आपको लगेगा कि जैसे कीमा है, ज़रा उल्टे हैं। ये देख, बिल्कुल दिखाइए, ये देख फ्लैट। ठीक है, चलें जी, आप अपना काम जारी रखें। ये चीज़ डालना है। वाह वाह वाह, चीज़ इसके ऊपर जा रहा है। नहीं, इसके अंदर चीज़ गई और फिर इसके रोल बनाना है। पराठा जैसा हो गया तो, हाँ जैसे ये पराठा है और हम रोल बना रहे हैं, ऐसा हो गया। हाँ, फिर क्या धागे से लपेटेंगे इसको? ऐसे ही ये हो जाएगा। अच्छा, ज़रा मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं आसान, प्रैक्टिस के बाद। और चीज़ कितना डालना चाहिए आपके ख्याल से? शबीर भाई इतनी फीलिंग हो अच्छे से ये हो जाए, जब आप कट करेंगे तो चीज़ नहीं बहती हुई बाहर आती है, हाँ तो काफ़ी अच्छा है। क्या बात, ये देखें आप, 2 रोल बन गए। हाँ, उसके बाद ब्रेड क्रम्स, मैदा अंडा ऐड करके ब्रेड क्रम्स अप्लाई करना है और फिर तलना है। चलें जी, शुक्रिया अदा करेंगे हम किनका? जे डॉट, जो हमारे लिए भेजते हैं मलबूसात। तो अपनी ईद को अच्छा, खूबसूरत और दीदा से बनाइए। जे डॉट के मलबूसात इस्तेमाल कीजिए। साथ ही शुक्रिया अदा करेंगे पिज़्ज़ा पॉइंट का, जिनका कहना है 55% डिस्काउंट है। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए 55%, 1000 का पिज़्ज़ा 450 में मिलेगा। तो पिज़्ज़ा पॉइंट का एक ये वाउचर जो है, खुसूसी वाउचर हमारे हर गेस्ट के लिए एक है। तो पिज़्ज़ा पॉइंट का भी शुक्रिया। फ़तह मक्का आज का हमारा मौजू है, और शाह साहब और मुफ्ती शाहिद मदनी साहब खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लामा निसारी उजागर साहब, बताइए इस वाक़े के बाद क्या असरात हुए, इस फ़तह के बाद क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप देखें, ये जो फ़तह मुबीन मिली है, और कहा जाता है कि मोहब्बत फ़ातिह आलम, मोहब्बत ही पूरे आलम को जो है वो जीता करती है। और मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया है, तो हम देखते हैं सिर्फ मक्का फ़तह नहीं हुआ, बल्कि पूरा अरब फ़तह हो जाता है, और हकीकत में पूरी दुनिया फ़तह हो जाती है। इसी के बाद वो असरात ज़ाहिर होते हैं कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ लोग मुसलमान होना शुरू हो जाते हैं, और फ़ौज दर फ़ौज, जी हाँ, बड़े बड़े कबाइल, बड़े बड़े गाँव, हर जगह के लोग
हुजूर के कदमों में आते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। वाह। क्या मेरे हुजूर ने सनतें कायम की हैं? क्या मेरे हुजूर ने शहर आबाद किए हैं? अरे नहीं नहीं, आपने तो दिलों को आबाद किया है। और दिल क्या आबाद हो गए? सारा जहान आबाद हो गया। जब मक्का फतह होता है तो इसके असरात दूर रस पहुंचते हैं, बहुत दूर तक। आप देखें कि यहाँ पर मोहब्बत का आलम क्या है। आज लोग कहते हैं कि तो जंगों के जरिए, तलवारों के जरिए इस्लाम को फैलाया गया। आप देखिए कि जानवरों पर कितना रहम है। जब मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी से करीब आ रहे थे, मक्के के करीब, तो देखा एक कुतिया ने बच्चे दिए में हैं। तो देखा उसके 2-3 बच्चे हैं और इतना बड़ा लश्कर है मुसलमानों का, तो कहीं बच्चे पामाल ना हो जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी, तुम यहाँ खड़े रहो, और वो हटाते रहे रास्ते से, वाह वाह वाह। ताकि कुतिया के बच्चे पामाल ना हो जाएं, वो कहीं पाँव के नीचे ना आ जाएं। वाह, तो आप देखें जब जानवरों पर इतना रहम है तो इंसानों पर कितना रहम होगा। क्या बात है, यही माशाल्लाह। वजह है कि मेरे आका ने ही फरमाया ला तफरीबा अलैकुमुल यौम। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नारा लगाया था, अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, तो मेरे आका ने अपने कुरैशी भाइयों को माफ़ कर दिया है और बता दिया है कि असल फातिह कौन होता है, असल हुक्मरान कौन होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, फिर ये जो कहा जाता है इस्लाम दहशतगर्दी और जंगों से, मारा मारी से, कत्ल व गारतगिरी से फैला, इस रवैये की, इस फ़िक्र की नफ़ी होती है? देखिए, अगर किसी शख्स का मामला ये हो कि उसका कहना बसबब बुग़्ज़ हो, तो उसका तो कभी कोई जवाब नहीं होता, इलाज नहीं होता, और ना ऐसों को जवाब देना चाहिए। मशरकी मुस्तशरिकीन जितने भी राइटर्स हैं, उनमें से जिन्होंने भी मिजाज एतदाल के साथ सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ा तो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। वाह वाह। और इस बात को एक्सेप्ट किया कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम से बड़ी शख्सियत इस कायनात में नहीं आई। वाह वाह। अभी क़िबला शाह साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं उसे मज़ीद ज़ोर देकर कहना चाहूँगा कि फ़तह मक्का पर अगर जंग हो जाती तो जो फ़वाइद हुए वो क़तअन हासिल ना होते। ये बहुत अहम बात है कि जो फ़तह, यानी आज अगर लड़ाई हो जाती, जी हाँ, आज इस्लाम जो हम तक पहुँचा वो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम के उस आला अखलाक की वजह से पहुँचा कि जिसमें दुश्मनों ने अखलाक से मुताअस्सिर होकर इस्लाम कबूल किया। और ऑफियर हम एक बात कर रहे थे कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम जानिब मक्का जा रहे हैं, लेकिन आपका जो जिस्म अतहर है, आपका जो ज़ाहिरी मामला है, वो इंतहाई मुतमईन, रिलैक्स, ये एक अल्लाह की बड़ी नेमत होती है। और ये उन लोगों को हासिल होती है जो अल्लाह पर तवक्कुल कामिल करते हैं। वाह वाह। फिर उन्हें ये खौफ नहीं होता कि मैं कहीं पर नाकाम हो जाऊंगा, कहीं पे पसपा हो जाऊंगा, वक्त से पहले मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, नहीं। उनका जो टोटल मामला होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पर होता है, और वो चीज़ है तौफीक। जिसका यकीन तौफीक पर आ गया, मैंने इस बात का बड़ा मुशाहदा भी किया, मुझे तजर्बा भी हासिल है कि उसमें इज़्तिराब फिर नहीं आता, वो फिर सदा बहार हो जाता है। वो अगर दुख में भी आता है तो वो इस नज़रिए से नहीं देखता कि इस दुख की वजह से मेरे जिस्म को तकलीफ़ हो रही है, वो अपनी ज़बान हाल से ये कहता है कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, सुखनू में चुल्ले पावा। इसीलिए जहाँ पर सब्र मुश्किल होता है वहाँ पर तौफीक का नज़रिया रखने वाला शख्स जो है वो शाकिर होता है। यानी सब्र वाले और अक्ल वाले परेशान होते हैं कि इस मुश्किल वक्त में तो सब्र मुश्किल है। और ये अल्लाह का ऐसा बंदा है कि जो इस सब्र के मौके पर शुक्र अदा कर रहा है। जहाँ पर सब्र करना मुश्किल है वो ये कह रहा है कि मौला तेरा शुक्र है। उसकी वजह क्या है कि उसके मलहूज़े निगाह सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो भी काम है, जो भी मामला है, वो सिर्फ और सिर्फ तौफीक से है। और जिसे इस पर यकीन हो जाए तो उसे जल्दबाजी नहीं होती। क्यों? कि वो ये जानता है कि अगर तौफीक नहीं होगी, मैं जितनी मर्जी है कोशिश कर लूँ, काम नहीं होगा, और अगर तौफीक होगी, मैं कोशिश नहीं भी करूँगा, वो काम हो जाएगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अंडे में आपने नमक डाला था, क्या डाला था? शबीर भाई, अंडे में मैदा ऐड किया। मैदा, हाँ, देखिए ज़रा, और इस तरह इसके अंदर डिप किया। और वो चिकन जिसके अंदर चीज़ है बिल्कुल। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स इस तरह अच्छे से कोटिंग करनी ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद ये ऑयल की नज़र, उसके बाद ऑयल के हवाले, लेकिन अच्छे से इस तरह कीजिएगा ताकि ये यहाँ इसकी बाइंडिंग रच बस जाए। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि इसकी कुछ हम बांध नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे ही हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। तो ब्रेक पे जाएं, वापस आएंगे तो इसकी फ्राई हो रही होगी या हो चुकी होगी, ये देखिए। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मज़ेदार सहरी में
जो डिश तैयार हो रही है उसका नाम है, चिकन कार्डन बिलू। और साथ साथ गुफ्तगू हो रही है फतेह मक्का पे। ये देखिए, वैसे तो बिलू नहीं है, खाली डिश का नाम है, उसमें बिलू है, यहाँ कलर दूसरा है। एक चीज़ होती है बिलू, बिलू चीज़ कहते हैं। अच्छा, ये कलर वाला बिलू नहीं है? ये देखें आप, हाँ बिल्कुल देखें, खुला नहीं है, ज़बरदस्त कलर आया, टर्नओवर। अच्छा, चाहें तो इसको रोल करने के लिए आप टूथपिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूथपिक दांतों में डाली हुई ना हो। सही बात, हाँ बिल्कुल शबीर भाई, बताना ज़रूरी है भाई। अच्छा शबीर भाई, जो आप कह रहे थे ना गरावट का, तो इतना चूल्हा रखना है कि ये फ्राई भी हो जाए और अंदर तक मीट बिल्कुल टेंडर गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो वो भी लाजमी है एट द सेम टाइम। तो इसके लिए चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, नॉर्मल पैन के अंदर इसे आपने फ्राई होने देना है। और ये आपने अभी जो डिश बनाते वक्त ये वाली जो बात की है, ये इस डिश में है काम की बात। और दूसरी, और अब हम जो जा रहे हैं जिस सेगमेंट की तरफ, उस सेगमेंट में भी रोज़ाना होती है कोई ना कोई काम की बात। इसीलिए इस सेगमेंट का नाम है काम की बात। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। काम की बात में आज जो काम की बात है वो ये है रास्तों से तकलीफ़ों को या रुकावटों को दूर करना। और अभी मैंने ज़्यूरिच की बात की ना, तो यूरोप के कुछ लोगों का मिजाज आपको बताऊंगा, बाकी उनमें ख़राबियाँ होंगी, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का वो भी ख्याल रखते हैं। तो हम तो मुसलमान हैं, कैसे ख्याल रखना है और क्यों रखना है, हम पे ज़िम्मेदारी क्यों है, और ये सजता और जचता भी हमें है कि हम रास्तों से तकलीफ़ों को, रुकावटों को दूर करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हैं कि हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दरमियान में कि एक आदमी रास्ते में चल रहा था, उसने एक कांटे की शाख को पाया तो उसको रास्ते से हटा दिया, तो अल्लाह ताला ने खुश होकर उसको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। एक और हदीस है, वो भी हज़रत अबू हुरैरा से है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, कि उन्होंने फरमाया कि सरकार दो आलम वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी एक दरख्त की टहनी के पास गुज़रा जो रास्ते की पुष्ट पर थी, तो उसने कहा कि मैं ज़रूर इस टहनी को मुसलमानों के रास्ते से हटा दूंगा ताकि ये मुसलमानों को ईज़ा या तकलीफ़ ना पहुंचाए। तो वो आदमी जन्नत में दाखिल कर दिया गया। और इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों में रिवायत किया गया है। एक और रिवायत है जिसमें हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, मुझे ऐसी चीज़ की तालीम दीजिए कि मैं इससे नफ़ा पाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकलीफ़ की चीज़ को मुसलमान के रास्ते से हटा दो। वाह। अच्छा, एक दो हमारे मुसन्निफ़ीन हैं जो अब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, उन्होंने कुछ मिसालें भी दी हैं। तो वो बता रहे थे कि जैसे पहले ट्रेन जब आती थी ना हमारे यहाँ स्टेशंस पर, पहले ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा होता था जी। अब तो वक्त के साथ साथ दीगर चीज़ें भी आ गई ट्रांसपोर्ट के लिए। तो लोग जब ट्रेन आती थी तो तेज़ी से भागते थे ट्रेन की तरफ कि निकल ना जाए। तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं ना, तो केले वगैरह, सेब वगैरह वहीं से फ्रूट लेके खा रहे हैं, तो केले के छिलके फेंक दिया करते थे। जब केले के छिलके फेंक दिया करते थे वहीं प्लेटफॉर्म पर, तो जब लोग ट्रेन को वक्त पर ट्रेन में सवार होने के लिए जब दौड़ते थे तो बहुत से लोग उस केले के छिलके पर स्लिप हो जाते थे और उस भगदड़ में बहुत से लोग ज़ख्मी हो जाते थे। तो कुछ हमारे पुराने मुसन्निफ़ीन ने लिखा कि ये नज़ारा हमने आँखों से देखा, तो फिर हमने अपनी किताबों की ज़ीनत बनाया कि सरकार तो ये फरमा रहे हैं कि अपने रास्ते से अगर तकलीफ़ हो, रुकावट हो तो हटाओ, और हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से चीज़ों को फेंक रहे हैं जिससे लोग गिर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में भी हम बेनियाज़ हो जाते हैं कि कोई चीज़ रास्ते में पड़ी है, लोग गिर रहे होते हैं, गटर का ढक्कन खुला हुआ है, बच्चे गिर रहे हैं, नाला जो है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि अंधेरे में बच्चे की लाश ढूंढी जा रही है, इस तरह के वाक़यात हो रहा है। तो हुकूमत कितनी ज़िम्मेदार है, इन रिवायतों को देखें तो हम कितने ज़िम्मेदार हैं। और बाहर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि लोग अपनी दुकानों, अपनी शॉप्स, अपने दफातर के बाहर जो है वो बार बार सफाई की कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं जिससे सफाई होती है, और चीज़ों को हटा रहे होते हैं ताकि गुज़रने वाला गुज़र सके। फुटपाथ पे कोई रुकावट ना हो, हटाते रहेंगे, कोई चीज़ गिर जाए, पत्ते टहनी आई है, उसको साफ़ करते रहते हैं ताकि लोग गुज़र सकें। तो शियार तो हमारा है, अपनाया दूसरों ने है, और अजर कितना ज़्यादा है कि अल्लाह ताला खुश होकर जन्नत अता फरमाते। जी शाबाश। माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन
فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہی ہم تمام کو کرے. آمین. شبیر بھائی خود غرضی میں معاشرہ نہیں بن سکتا. معاشرہ ایثار اور تعلق سے بنتا ہے. دیوار قائم ایک اینٹ سے دوسری اینٹ سے جڑ کر بنتی ہے. خود غرضی ہی تمام بد اخلاقیوں کی بنیاد ہے. حسد خود غرضی کی وجہ سے بنتا ہے. تکبر، ریاکاری، لالچ، ہرس، حرام خوری، یہ سب کی بنیاد جو ہے نا گناہوں کی خود غرضی ہے. اور خود غرضی کا مطلب یہ ہے کہ بس میں بچ گیا باقی معاشرے کو چھوڑو، میرا گھر سنور گیا باقی سب کو چھوڑو. اسلام اس سے بالکل اگینسٹ درس دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تمہارا معاشرہ بچے گا تو تم بچو گے اور تم رب کی بارگاہ میں خوشنودی اس وقت حاصل کرو گے کہ جب باہر والوں کا خیال تم زیادہ رکھو گے. اب آپ دیکھیں ہم دور دور جا کے صدقات کرتے ہیں، کرنا چاہیے. ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بالکل کہلانا چاہیے. ہم اور بہت سے احسن کام کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے نیچے کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے. 500 روپے 100 روپے دے کر ہم اس کو صاف کرا کر کتنا بڑا اجر کما سکتے ہیں. اب ایک سیوریج کی لائن ہے، اس پر جناب ڈھکن لگا ہوا، اب لوگ اس میں گر رہے ہیں، بچہ گر رہا ہے. اب وہ کتنے کا ملتا ہے؟ ذمہ دار تو گورنمنٹ ہی ہے جو کرپشن کر رہی ہے، جو پیسے کھا جاتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. 150 روپے کا ملتا ہے. جی بالکل، آپ لا کر رکھ دیں، اس پر جتنے قدم چلیں گے وہ آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے گا. سرکار کریم نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کو اذیت و تکلیف سے بچانے کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، خدا اس کی نیکی کو اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اس خوبصورت کام کی بات کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب.